everyone, myself Sujata. Today I am going to teach you food security from second chapter Agriculture and Industrial Development for FYBCom second semester. So let's start the topic. The topic is food security. Before starting the topic food security, understand what is the need of the food security. जैसे हमारे इंडिया में अगर हम इंडिया के बारे में और फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड अमंग 119 कंट्री में से वर्ल्ड फूड हंगर इंडेक्स में इंडिया का नंबर आता है 100 रैंक पे। तो यू कैन इमेजिन कि हमारा इंडिया हंगर इंडेक्स में कितने लोअर रैंक पे आता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। देन अनदर थिंग, as per the report, out of the four person, the one person belongs to the India are undernourishment. They are suffering from the malnutrition. So these are the reasons that we should think about the food security, and this is the necessity to study about the food security. So what are the reason of the food insecurity? Let's start with the topic. The some reason I have explained here, that is the fluctuating world food prices. In the world, the globalization has started and the food prices are not so much stable. Every situation can affect on the food prices. So if there will be fluctuation in the economy, there will be war like a situation in other countries, anything can be effect on the food prices. So all over the world, the food prices are not stable. Then international trade and rule. In the globalization, the free trade is going on and the import export is a free. But apart from that, still the some countries have good relation with the other, but other countries does not have. You can take the example of India always export material to their friends countries. We have good relation with the America. India, we are exporting lot of material to America, food grains, sugar, fruits, we are exporting to the other countries. But there are some countries are not friend country. For this category, India is not exporting the goods, and another time they will ban this export. So this international trade and this international trade rules relation are not stable. That's also effect on the food security. Another thing is climate change. The world is facing the problem of climate change. The temperature is increasing. The monsoon arrival is not common. The date of the arrival and departure has changed. Even the ice in Antarctica is melting. So these all things have affected on the agriculture. How it is affected on the agriculture? Because food grains are very sensitive and they need a specific atmosphere, they need a specific temperature to grow, and the climate change has affected on these crops, and that's why ultimately the food production has decreases. Another reason, the use of the food grain for making alcohol and biofuel. See, the food grain are for the food purpose, but if this food grain will be used for the alcohol and biofuel, then definitely the stock will be decreased. And this alcohol and biofuel will give good amount of the money. That's why the farmer are selling this food grain to alcohol for making alcohol and the biofuel. So these are the some things which are decreasing the food grain. Then calamities like a drought and flood are also responsible on the decreasing food. How it is happened in India,
after every 4 year there will be drought like a situation. That's why always in India we are facing the drought situation. Even the flood is very common in the state like Madhya Pradesh, sorry, it's very common in the state like Uttar Pradesh, Bihar and Pashchim Bengal. Even in it is very common in the Maharashtra also. So every state almost they face the problem of the flood, and this drought and flood are responsible to decrease in the food grain. So these are the all causes. Among all these, even sometimes the political situation also create the problem of the food insecurity. If the situation in the country is not stable, if there will be war like a situation, otherwise there will be curfew, otherwise there will be lockdown, the food will be not available for the people. In the Jammu Kashmir, the people are always facing the problem of the food insecurity. If during the lockdown people will not have access for the food like vegetables, because the markets will be closed and there will be no access for the food. So this type of the situation are responsible for food insecurity. Here, the definition has given Food and Agriculture Organization. Its work under the United Nations Organization. They have defined what is the food security. The definition is ensure that all people to all time have both economic and physical access to basic food they need. So what is the main theme? All people means इस पे कोई भी लोगों को उनके कास्ट, रिलीजन, रेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता. सारे लोगों को क्या होना चाहिए? ऑल द टाइम, कोई भी टाइम मीन्स एवरी डे, ठीक है, हर रोज उनको क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सेस टू द बेसिक फूड दे नीड. व्हाट टाइप ऑफ एक्सेस? इकोनॉमिक एक्सेस एंड फिजिकल एक्सेस. अभी इकोनॉमिक एक्सेस का मतलब क्या है? जैसे एक गरीब पर्सन है, ठीक है, उसके पास वो सब्जी खरीदने के लिए, ग्रेन्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, तो फिजिकली वो सारी चीज़ें उसके सामने है, फूड उसके सामने है, वेजिटेबल उसके सामने है, ग्रेन्स उसके सामने है, बट उसके पास पैसा नहीं है तो वो चीज़ों को नहीं ले सकता, वो उसको खरीद नहीं सकता. तो ये सिचुएशन में क्या होता है कि उसको इकोनॉमिक एक्सेस नहीं है, ठीक है, तो उससे भी फूड इनसिक्योरिटी होती है. दूसरी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ लोगों को फिजिकल एक्सेस नहीं होता है. कौन सी ऐसी सिचुएशन? फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो सकती है, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन हो सकती है, नेचुरल कलामिटी जैसी सिचुएशन हो सकती है, जिस टाइम में लोगों के पास पैसा तो होता है लेकिन वो चीज़ों को खरीद नहीं सकते, उनके पास उसके लिए फिजिकल एक्सेस नहीं होता है. ओके, सो दिस थिंग्स कम अंडर द डेफिनेशन. एंड अनदर थिंग, they should have access to what type of food? That is the basic food जिसमें grains, fruits, vegetables, these are all the basic food. ऐसे नहीं कह सकते कि they should have access for the pizza, they should have access for the beverages, they should have access for the burger, that all what they want. No, in this definition they are talking about the basic food. So I will repeat the definition of food security, that ensure that all people to all time have both economic and physical access to basic food they need. I think this definition is clear for you. So let's move for the next point, that is solution to the food insecurity. You have seen what are the causes of the food insecurity. So how can we tackle with the problem of food insecurity? How can we establish food security? The first thing is the biotic and genetically modified crop. These are useful. By this technology, the agriculture production has increased, and in our green revolution, this method has adopted. Then, second is the food aid, providing food to the needy people.
The government can provide the food to poor people, the homeless people. Okay, so this in this way the government will give access to the needy people. These are the two solutions for the food security. Now we will discuss that how food security is implemented in India, how it's working. The first thing what Indian government did, they started green revolution in the 1965 under the leadership of MS Swaminathan. इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड ग्रीन रिवॉल्यूशन. अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, इसका मतलब क्या है, जो जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स थे उनका यूज़ करना शुरू किया था. दैट इज़ द हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, उससे प्रोडक्शन बढ़ गया. दूसरी चीज़, लोगों को जो फार्मर थे उनको मशीनरीज दी गई थी, वहाँ उनको केमिकल फर्टिलाइज़र दिया गया था. उसके बाद उस एरिया में इरिगेशन फैसिलिटीज़ का भी डेवलपमेंट करने के लिए प्लान बनाए गए थे और इरिगेशन कैनल्स ऐसा डेवलपमेंट उस टाइम में किया गया था. सो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल इन सम स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. But the problem with this green revolution, it was not spread all over the India. It was just confined to the few states and very few farmer were uh, got profit from this green revolution. Another food security in India they implemented with the public distribution system. Now you may think this term is new for you, but actually this is not new for you. Everybody knows about it. हम इसको कहते हैं रेशन. ठीक है, रेशन लेने के लिए लोग जाते हैं, उसके लिए आप सबके पास कार्ड होता है. जैसे किसी के पास वाइट कार्ड होता है, किसी के पास येलो कार्ड होता है, येलो रेशन कार्ड होता है, किसी के पास ऑरेंज कलर का रेशन कार्ड होता है. और रेशन कार्ड लेके जाने के बाद जो रेशन कार्ड जो रेशन शॉप है वहाँ से आपको फूड ग्रेन दिया जाता है. और जो प्राइजेस होते हैं बहुत मिनिमम रहते हैं. ठीक है, 5 रुपीज़, 7 रुपीज़, 10 रुपीज़, इतने कम प्राइस में आपको फूड ग्रेन मिल जाता है. तो उसको ही कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मॉनिटर किया जाता है और इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया. तो इसमें क्या किया जाता है, अंडर दिस सिस्टम द फूड ग्रेन इज़ प्रोवाइडेड टू द पुअर सिटीजन एट मीडियम प्राइस. ठीक है, तो मीडियम प्राइस में लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. उसके बाद इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. यस, दिस विल रियली वर्क. See, in India, the government has implemented one scheme. Maybe you have heard about it. That is the MNREGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Under this scheme, all people who are staying in rural area, they have access for the employment for 100 days. ठीक है, तो गांव में रहने वाले कोई भी लोग 100 दिनों के लिए एम्प्लॉयमेंट उनको मिलना उनका हक है. ठीक है, अगर उनको ऐसे नहीं मिल सकता दे कैन आस्क फॉर देयर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर द एम्प्लॉयमेंट. और उसके लिए उनको वेजेस दिए जाते हैं, डेली वेजेस. और कुछ टाइम ऐसे भी स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाता था कि इंस्टेड ऑफ द वेजेस दे वर पेइंग हाफ वेजेस एंड हाफ फूड ग्रेन. तो ऐसे करके ये मनरेगा जैसी स्कीम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है उससे लोगों को फ़ायदा होता है एंड इट विल हेल्प टू रिड्यूस फूड इनसिक्योरिटी इन द कंट्री. देन प्रोवाइडिंग लैंड टू द लैंडलेस पीपल, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और पुअर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी. Then another thing is the stabilizing food supply and food prices. See, if the food grain otherwise vegetable prices will increase, then common people, the poor people will not afford this ऑल फूड ग्रेन. ठीक है, तो उनके लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है और उसके वजह से सबसे ज़्यादा जो पुअर लोग हैं सबसे ज़्यादा सफ़र होते हैं. दैट्स वाई द गवर्नमेंट शुड मॉनिटर दिस फूड प्राइजेस
एंड दे शुड कीप इन अ कंट्रोल। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पहले से वो फार्मर से कुछ पहले से फूड ग्रेन खरीद करके उनके गोडाउन में रखती है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो मार्केट को मॉनिटर करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए उसको मार्केट में फिर से बेचने के लिए निकालती है। तो इन दिस वे द कंट्री कैन इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। अदरवाइज अगर अदर कंट्री से इंपोर्ट करके भी उस प्राइस को मॉनिटर किया जा सकता है। इवन इसमें मेंटेनिंग बफर स्टॉक फॉर द नेचुरल कलामिटीज आर सम स्ट्रेटेजी फॉर द फूड सिक्योरिटी। अभी गवर्नमेंट शुड मेंटेन बफर stock they should maintain for these natural calamities like a flood, like a situation, for the drought like a situation, even like a war like a situation. Government should have food grains with them. So these are some stage can have implemented for under food security in India. Here in this picture they have explained what is the food security bill. ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी बिल में बताया गया था कि जो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उसके 75% पॉपुलेशन फूड सिक्योरिटी एक्ट में आएगा और 50% लोग अर्बन एरिया के फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर किए जाएंगे। दूसरी बात बताई गई थी कि सबको 5 kg पर पर्सन 5 kg फूड ग्रेन मिलेगा फॉर पर मंथ। उसके बाद बताया गया था कि ग्रेन की जो प्राइस रहेगी फॉर द पुअर पीपल, इट विल बी 3 rupees फॉर राइस, 2 rupees फॉर व्हीट एंड 1 rupee फॉर द कोर्स ग्रेन। ठीक है, तो ये प्राइस फूड सिक्योरिटी एक्ट में डिसाइड की गई थी। उसके बाद आंगनवाड़ी के जो लोग वर्कर्स रहते हैं वो क्या करेंगे, आपके एरिया में, उनके सराउंडिंग एरिया में जो 6 मंथ से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फूड प्रोवाइड करने का काम ये आंगनवाड़ी वर्कर्स करेंगे। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग को भी प्रमोट करने के लिए छोटे बच्चों को भी फूड ग्रेन का सप्लाई, उनको भी डाइट प्रोवाइड किया जाएगा अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद स्टेट फूड कमीशन क्रिएट किए जाएगी टू मॉनिटर दिस ऑल एक्टिविटीज। उसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल अंडरटेक पीडीएस रिफॉर्म्स। पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स। ठीक है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे काम करेगी उसके लिए रिफॉर्म्स लाए गए थे एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टुक चार्ज फॉर इट। उसके बाद बताया गया था कि अगर कोई सिचुएशन आती है, ठीक है, अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए, नहीं तो कोई इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल द आंगनवाड़ीज वर्कर दे आर नॉट प्रोवाइडिंग फूड टू द पीपल, इवन देयर विल बी प्रॉब्लम इन द मिड डे स्कीम, देन दिस ग्रीवियंसेस, दिस केसेस शुड सॉल्व इन द स्पेशल कोर्ट। तो ऐसी भी एक तरतूद उस फूड सिक्योरिटी एक्ट में की गई थी। उसके बाद द मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया दैट इज द मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द इंडिया और इसमें उस टाइम इससे पहले फूड सिक्योरिटी एक्ट से पहले इंडिया में एजुकेशन राइट टू एजुकेशन भी इम्प्लीमेंट किया गया था। उसमें बताया गया था कि 5 साल से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी है एंड दिस इज़ द राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में ये सारे बच्चे कहाँ रहेंगे, 5 साल से 14 साल तक के बच्चे स्कूल में रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे बच्चों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिड डे स्कीम इम्प्लीमेंट करके उनको स्कूल में ही दोपहर का खाना दिया जाता है। सो हाउ द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो उसके आगे जाके अभी देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी के लिए क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट करता है। द फर्स्ट प्रॉब्लम डिक्रीज इन द यील्ड। अभी यील्ड कैसे कम हो सकता है ड्यू टू द स्टैपल फूड डिक्रीज इन यील्ड। स्टैपल फूड लाइक राइस, व्हीट, मेज, इट विल बी हिट बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो राइस, व्हीट, मेज है दे आर वेरी सेंसिटिव। उनको एक स्पेसिफिक क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। दे कैन सर्वाइव इन द स्पेसिफिक टेम्परेचर दैट इज़ द 21 डिग्री सेल्सियस टू द 25 डिग्री मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस।
अगर टेम्परेचर इससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है देन दिस फूड ग्रेन का उसका जो यील्ड होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद अभी बहुत सारे पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ हो रहा है, उसके वजह से सॉइल की भी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। उसके बाद मानसून अराइवल और रिट्राइवल में चेंजेस हो रहे हैं, फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। उसके बाद ड्रॉट जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसके वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन धीरे धीरे घट रहा है। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज रीजन से जो पोल्यूटेंट रिलीज किया जाता है उसके वजह से सराउंडिंग एरिया की सॉइल और सराउंडिंग एरिया का वाटर पोल्यूटेड होता है, और उसके वजह से सॉइल पोल्यूशन के वजह से और भी फूड प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। उसके बाद हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से भी फूड न्यूट्रिशन वैल्यूज कम होती जाती है और शुगर कंटेंट बढ़ते जाते हैं। सो दीज आर द सम रीजन in the way the climate change has effect on the food grain. So I hope you have understand this video. If you have any doubt, then any question, you can comment below. Thank you for watching the video. Thank you very much.